बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की साइंस 8 की टेक्स्ट बुक, इसके साथ साथ एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की रीइंफोर्समेंट के लिए और होमवर्क जो आपको दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक क्लास 8 का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स अगर किसी तरह की कुछ गाइडेंस चाहिए तो उनके लिए समर पैक एक बहुत यूज़फुल रिसोर्स साबित होगा। इस रिसोर्स पैक में तमाम SLOs अपनी मुनफरिद टीचिंग मेथडोलॉजी के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ बहुत उम्दा तरीके से बयान किए गए हैं। साइंस का ये समर पैक और ये रिसोर्स पैक cantorpublisher.com वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। The today's lecture is from Science of Grade 8 and the chapter which is under discussion is chapter 3, that is about biotechnology. It's our second lecture from chapter 3 and in this chapter we are going to study a very important phenomena, a process taking place in cells. This phenomena is the copying or the replication of DNA. What does DNA replication means? Where does it takes place? What is the purpose of DNA replication? All the questions will be answered in this lecture. The SLO that will be achieved through this SLO is explain how DNA is copied and made. We'll find the resource port on our textbook at page 32 and then page 33 under the heading of DNA replication or the copying of DNA. It's the topic 3.2. Before starting the process of DNA replication, it would be better if we understand the structure of DNA in detail. So, first of all, or in our first part of this lecture, we'll understand the structure of DNA in detail. So, let's see what the DNA structure actually is. Here you can see a model of DNA. DNA, as we all know, is the condensed form of chromosomes present in the nucleus. It's a double helical structure. Double helical means it contains two strands, strand number 1 and strand number 2, which are joined together through chemical bonds. These are the chemical bonds which join two strands. And it presents a ladder-like structure. Here it is the ladder-like structure. The unit of DNA is nucleotide. The whole DNA is made up of repeating unit of nucleotides, just as carbohydrates are repeating units of glucose, and glucose. In the same way, the starch which is present in the leaves as food source is the repeating unit of glucose. Glucose is the food prepared as a result of photosynthesis. So, in the same way, many nucleotides join together to form a molecule of DNA. DNA is a biomolecule and macromolecule as well. Macromolecule means a large molecule. So what is a nucleotide? Nucleotide is the combination of three elements, three features, three units. Number 1, phosphate. Phosphate is attached with a 5-corner sugar which is called deoxyribose. And the name of DNA, deoxyribose nucleic acid, is deduced from one part of this. And the third one is nitrogenous base. These three units combine together to form a single nucleotide. And the main repeating units of these three elements, these three factors, made up a molecule of DNA. अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो 4 तरह की होती हैं, 4 टाइप्स की हैं। ग्वानिन ये वाली, एडेनिन इन ग्रीन कलर, थायमिन इन पर्पल कलर and cytosine in orange color. These 4 bases may present alternatively. In one nucleotide, only one base is present. As you can see here, it's the phosphate group, it's the sugar which is deoxyribose sugar, and with deoxyribose sugar, out of 4 bases only guanine is present.
and in second nucleotide, this one with deoxyribose sugar, thymine is attached, and in third one cytosine is attached, and in fourth nucleotide adenine is attached. अब ये जो आप देख सकते हैं कि जहाँ भी ग्वानिन अटैच है इसके साथ साइटोसिन अटैच है, और जहाँ साइटोसिन अटैच है उसके साथ ग्वानिन बेस अटैच है। इसी तरह थायमिन बेस के साथ एडेनिन बेस का ग्रुप है और एडेनिन बेस के साथ थायमिन बेस का ग्रुप है। इसका क्या मतलब है कि ये बेसिस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ग्वानिन हमेशा बॉन्ड बनाएगी, हमेशा पेयर अप होगी साइटोसिन के साथ, एंड एडेनिन बेस हमेशा 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 पेयर अप होगी थायमिन बेस के साथ। ये सीक्वेंस या ये बेस पेयरिंग, इसे बेस पेयरिंग भी कहते हैं। ये बेस पेयरिंग यानी ग्वानिन का साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाना और एडेनिन का थायमिन के साथ बॉन्ड बनाना डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के तौर पर पेश करता है। इसका क्या मतलब है कि जहाँ भी ग्वानिन होगी वहाँ इसके ऑपोजिट यानी इसके दूसरे स्ट्रैंड में, इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में साइटोसिन बेस प्रेजेंट होगी, और जहाँ भी थायमिन का न्यूक्लियोटाइड होगा इसके ऑपोजिट यानी इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में एडेनिन की नाइट्रोजनस बेस वाला न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा। जैसे यही वो सीक्वेंस है जो डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करता है हमारी, और हमेशा एक ही जैसे डीएनए मॉलिक्यूल्स रेप्लिकेशन के बाद वजूद में आते हैं, सिर्फ इस बेस पेयरिंग की वजह से। यहाँ भी वही बात है कि डीएनए स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स है, यानी कि इसमें एक न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजनस बेस होगी वो हमेशा अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ पेयरिंग करेगी, अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ बॉन्ड बनाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सी यानी साइटोसिन के साथ थायमिन वाली बेस अटैच हो, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। जहाँ भी साइटोसिन है इसके साथ ग्वानिन का बॉन्ड है, जहाँ भी एडेनिन है इसके साथ थायमिन का बॉन्ड है, जहाँ भी साइटोसिन है ग्वानिन, यहाँ ग्वानिन के सामने साइटोसिन। इस पिक्चर में भी डीएनए के मॉलिक्यूल को एज ए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आपको दिखाया गया है। इसका मतलब यह है कि जहाँ भी साइटोसिन होगी इसके साथ ग्वानिन ही पेयर अप करेगी इसके दूसरे स्ट्रैंड पे। ऐसा नहीं हो सकता कि साइटोसिन के साथ थायमिन या एडेनिन में से कुछ बॉन्ड बनाए, हमेशा साइटोसिन के साथ ग्वानिन बॉन्ड पेयरिंग करेगी। अब आप इसकी अरेंजमेंट देखिए कि ये जो राइबोस शुगर है ये एक्चुअली डीएनए मॉलिक्यूल की बैकबोन बनाते हैं, जैसा कि ये आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन हमेशा राइबोस शुगर यानी डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट की होगी, और इनका आपस में इन दोनों स्ट्रैंड्स का आपस में लिंक नाइट्रोजनस बेसिस के साथ होगा, और नाइट्रोजनस बेसिस हमेशा बेस पेयरिंग करती हैं यानी अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ ही बॉन्डिंग करती हैं। ये सारा मॉलिक्यूल डीएनए का जो कि लैडर लाइक स्ट्रक्चर है ये फ्री फॉर्म में डबल हेलिक्स की सूरत में होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक कपड़े को बलदार सूरत दे दी जाए। ये बल खाते हुए एक रोप की तरह डीएनए का मॉलिक्यूल अब प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, और इस स्ट्रक्चर को डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब आते हैं अपने लेक्चर के पार्ट बी की तरफ, यानी जो कि हमारा एक्चुअल में एसएलओ की डिमांड है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। सो व्हाट इज रेप्लिकेशन एक्चुअली इज? Replication, as its name indicates, is the copying of DNA material. Replicate करना, duplicate करना, copy करना, और DNA ये जो parent strand है, जो original strand है DNA का, जब ये replicate करेगा तो इससे दो strands बनेंगे, strand 1 और strand 2, जिन्हें daughter strands कहा जाता है। यानी एक DNA खुद को दो स्ट्रैंड्स में कॉपी कर लेता है, और कॉपी करते हुए अपनी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन नए बनने वाले डॉटर स्ट्रैंड्स को एग्जैक्टली ट्रांसफ़र करता है। ऐसा नहीं होता कि दो बनने वाले स्ट्रैंड्स में से किसी एक में एक तरह की इन्फॉर्मेशन हो और दूसरे स्ट्रैंड में दूसरी तरह की इन्फॉर्मेशन हो। ये दोनों स्ट्रैंड्स एग्जैक्टली डिटो कॉपी होंगे अपने पेरेंट स्ट्रैंड्स की। सो डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स टू मेक आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए। मेक आइडेंटिकल कॉपीज मतलब एग्जैक्टली सिमिलर कॉपीज। अब हम देखते हैं कि रेप्लिकेशन प्रोसेस कब और कहाँ होता है। व्हेन डज डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस? इसका आंसर तो ये है कि बिफोर माइटोसिस, बिफोर
सेल साइकिल स्टार्ट्स। हमने पढ़ा था जब हम चैप्टर 2 में पढ़ रहे थे कि सेल साइकिल के 2 पार्ट्स हैं, माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस न्यूक्लियर डिवीजन है, न्यूक्लियस की डिवीजन है, और साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की डिवीजन है। और साइटोकाइनेसिस के बाद एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है। एक सेल के 2 सेल में डिवाइड होने के बाद एक लॉन्ग गैप आता है जिसमें सेल खुद को प्रिपेयर करता है नेक्स्ट डिवीजन के लिए। इस पूरे प्रोसेस, पूरे टाइम लैप्स में सेल खुद को रेप्लिकेट करता है ताकि अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रिस्टोर कर सके। एंड वेयर डज इट टेक्स प्लेस? ऑब्वियसली वेयर इट टेक्स प्लेस, वेयर माइटोसिस टेक्स प्लेस, यानी सेल के न्यूक्लियस में। डीएनए रेप्लिकेशन ये सेल का न्यूक्लियस है, सेल के न्यूक्लियस में टेक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई रेप्लिकेशन इज नेसेसरी। तो इसका आंसर ये है कि माइटोसिस के नतीजे में, चूंकि माइटोसिस में जब हम पढ़ते थे एनाफेज में, जब क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमियर से सेपरेट हो जाते हैं तो इनका नंबर रिड्यूस हो जाता है। तो इस नंबर को, क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करने के लिए डीएनए खुद को रेप्लिकेट करता है ताकि न्यू स्पीशीज में, न्यू ऑर्गेनिज्म में या न्यू सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन रहे। और आप जानते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम का रिमेन रहना एक किसी भी स्पीशी का कैरेक्टर है। सो टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन न्यूली फॉर्म्ड सेल्स आफ्टर माइटोसिस, डीएनए रेप्लिकेशन इज नेसेसरी। अब आते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। डीएनए रेप्लिकेशन में फर्स्ट स्टेप है, क्या है? ये आप देख रहे हैं कि ये आप डीएनए का एक स्ट्रैंड है। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है जब डीएनए फोक बनना शुरू होते हैं। जब ये 2 स्ट्रैंड किसी एक पॉइंट से अनजिप होना शुरू होते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज द अनजिपिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। जब 2 स्ट्रैंड्स अनजिप होते हैं तो रेप्लिकेशन फोक बनती है। और हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज is an enzyme that is responsible for developing a replication fork। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एरिया और ये एरिया रेप्लिकेशन फोक है, जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन आगे से अनजिपिंग होना शुरू होगी वो रेप्लिकेशन फोक बनता जाएगा। ये इस तरफ और ये इस तरफ, यहाँ से फोक की डायरेक्शन इस तरफ और इस तरफ है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, आपको क्लियरली दिखाई गई है रेप्लिकेशन फोक, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। यहाँ पे भी ये हेलिकेज एंजाइम है जो इस डीएनए को अनजिप करता चला जाएगा। इसकी बेस, इन ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है इसको ब्रेकअप करता चला जाएगा। इनके ब्रेकअप करने के नतीजे में क्या होगा कि ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे जैसे रेप्लिकेशन फोक बनती चली जाएगी, एक और एंजाइम जिसे गायरेज एंजाइम कहते हैं, ये इनके जो स्ट्रेन्स आएंगे इसको अनवाइंड करने के दौरान उसको रिमूव करता चला जाएगा, अदरवाइज डीएनए मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो सकता है। सो हेलिकेज जैसे जैसे फोक डेवलप करता चला जाएगा, गायरेज एंजाइम इस पूरे मॉलिक्यूल में आने वाले स्ट्रेन्स को रिलीव करता जाएगा, इस मॉलिक्यूल के स्ट्रेन्स को रिमूव करता चला जाएगा ताकि रेप्लिकेशन फोक ईजिली बन सके। ये रेप्लिकेशन फोक की डायरेक्शन ये है। रेप्लिकेशन फोक के बाद और इनके बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद 2 तरह के स्ट्रैंड्स बनते हैं। एक को लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं और एक को लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूस है, यानी ये मुसलसल बनता चला जाएगा। यहाँ पे जब रेप्लिकेशन होगी तो ये कंटिन्यूसली होती चली जाएगी। ये कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी इसकी रेप्लिकेशन की वजह से होगी। और जो लैगिंग स्ट्रैंड है ये डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है, यानी यहाँ पे जब इस पॉइंट पे रेप्लिकेशन होगी तो वो रेप्लिकेशन फोक के एक तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी और दूसरा सेगमेंट्स में होगी। ये कंटिन्यूस रेप्लिकेशन, कंटिन्यूस फॉर्मेशन नहीं होगी न्यू स्ट्रैंड की, जैसा कि लीडिंग स्ट्रैंड में थी। लीडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन रेप्लिकेशन फोक की तरफ होगी, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन रेप्लिकेशन फोक से ऑपोजिट होगी। फिर एक और एंजाइम आएगा जिसे डीएनए प्राइमेज कहेंगे। डीएनए प्राइमेज जनरेट अ प्राइमर टू इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस। एक डीएनए प्राइमर आएगा, ठीक है, वो लीडिंग स्ट्रैंड पे भी, ये लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड, इन दोनों स्ट्रैंड्स पे एक प्राइमर आके इंसर्ट होगा और क्या करेगा, एक छोटा सा प्राइमर, एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए जनरेट करेगा, आरएनए जनरेट करेगा ताकि रेप्लिकेशन इनिशिएट हो सके। क्योंकि रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए किसी न किसी
इनिशिएटर की ज़रूरत है। ये एक्चुअली इनिशिएटर है, एक प्राइमर है टू इनिशिएट द डीएनए सिंथेसिस, और ये काम करेगा डीएनए प्राइमेज। आप देख सकते हैं कि डीएनए स्ट्रैंड पे ये हेलिकेज एंजाइम जैसे जैसे नया मॉलिक्यूल बनता चला जाएगा, डीएनए का पुराना मॉलिक्यूल अनजिप होता चला जाएगा, और गाइरेज एंजाइम इनके बलों को या इनकी जो अनबाइंडिंग के थ्रू इनमें स्ट्रेन आएगा उसे रिलीव करता चला जाएगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन में सेकंड स्टेप है कि इसमें न्यूक्लियोटाइड की एडिशन हो सके। यही रेप्लिकेशन है ना कि पेरेंट स्ट्रैंड के साथ एक नया स्ट्रैंड भी बनता चला जाएगा, आप देख सकते हैं। और ये काम डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू होगा। ये डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर के साथ न्यू बेसिस अटैच करता चला जा रहा है। ये चूंकि लीडिंग स्ट्रैंड है, इसलिए इस स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन की डायरेक्शन रेप्लिकेशन फोक की तरफ होगी, और ये चूंकि लैगिंग स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड, इसमें आप देख सकते हैं कि रेप्लिकेशन की डायरेक्शन रेप्लिकेशन फोक से ऑपोजिट होगी। अब यहाँ पे प्राइमर था, प्राइमर के आगे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होना शुरू हो गए, यानी इस स्ट्रैंड के अगेंस्ट न्यू स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो गया है। अब ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्या हैं? जैसे ये लैगिंग नीचे वाला स्ट्रैंड हमने लैगिंग स्ट्रैंड के तौर पे लेबल किया था। ये लैगिंग स्ट्रैंड चूँकि रेप्लिकेशन फोक से अवे होता है, सो इसमें बार बार प्राइमर आएगा, प्राइमर इंसर्ट किया जाएगा, और हर प्राइमर के बाद डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट कॉपी कर दिया जाएगा। ये जो शॉर्ट सेगमेंट्स होंगे इन्हें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। The lagging strand is copied away from the replication fork in small segments. Each segment is called Okazaki fragment. और ये lagging strand पे होंगे। अब प्राइमर रिमूव कर दिया जाता है लैगिंग स्ट्रैंड पे, और इससे डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो एक और एंजाइम इन प्राइमर को रिमूव करके यहाँ पे न्यू बेसिस ऐड कर देता है, और ये न्यू बेसिस वही होती हैं जो कि नीचे वाले यानी पेरेंट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस हैं। थर्ड स्टेप रेप्लिकेशन में है कि ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं उन्हें ज्वाइन कर दिया जाता है, और ये काम डीएनए लाइगेज की मदद से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की जगह पे न्यू बेसिस अटैच हुई थी, उन न्यू बेसिस को ज्वाइन कर दिया जाता है एक नए एंजाइम डीएनए लाइगेज की मदद से। इस तरह डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स कंप्लीट हो जाते हैं। एक पेरेंट स्ट्रैंड से 2 डॉटर स्ट्रैंड्स वजूद में आते हैं। ओवरव्यू के लिए हम दोबारा इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले डीएनए हेलिकेज डीएनए फोक डेवलप करता है। गाइडेज इन डीएनए को अनवाइंड करने में और स्ट्रेन्स को रिलीव करने में हेल्प आउट करता है। डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, नए न्यूक्लियोटाइड। डीएनए पॉलीमरेज से पहले डीएनए प्राइमेज एक प्राइमर डेवलप करेगा जिसके अगेंस्ट बेसिस बनती चली जाएंगी। फिर डीएनए पॉलीमरेज 1 प्राइमर को रिमूव करेगा और डीएनए लाइगेज इन तमाम सेगमेंट्स को ज्वाइन कर देगा। जब आपको डीएनए रेप्लिकेशन की डायग्राम बनाने को कहा जाए तो आप ये डायग्राम कुछ इस तरह से डेवलप करेंगे। अब डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। इसका क्या मतलब है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स का 50% अपने पेरेंट स्ट्रैंड से आता है। ये चूँकि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इसका जो एनलाइटेंड पार्ट है ये न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड है, जबकि इसका जो डार्कर पार्ट है ये पेरेंट स्ट्रैंड है। जब एक यूं डीएनए फोक बनी थी और इसके अगेंस्ट न्यू स्ट्रैंड डेवलप हुआ था, तो आपने देखा था कि एक डीएनए स्ट्रैंड का 50% पार्ट ए स्ट्रैंड में चला गया था और इसी डीएनए का दूसरा पार्ट दूसरा स्ट्रैंड दूसरे डॉटर स्ट्रैंड के साथ चला गया था। लिहाजा हर डॉटर स्ट्रैंड ने अपने पेरेंट स्ट्रैंड से 50% डीएनए लिया और उसके अगेंस्ट उसी की अपने पेरेंट स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए ही न्यू बेसिस ऐड की। इस तरह जो इंफॉर्मेशन पेरेंट स्ट्रैंड में थी वही इंफॉर्मेशन डॉटर स्ट्रैंड में भी एग्जैक्टली कॉपी हो गई। सो डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। अब आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क आप करेंगे पेज 35 और पेज 36 से। सबसे पहले टेस्ट एक्सरसाइज 1 से। पार्ट ए है टेस्ट एक्सरसाइज 1 का। फिल द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। यू आर प्रोवाइडेड विद अ स्टेटमेंट। यू हैव टू एनालाइज द स्टेटमेंट एंड देन find out the right option from the given 4 options. So number 1 MCQ that you will solve is helicase enzyme is responsible for। हेलिकेज एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। आपने उसका फंक्शन डिटेक्ट करना है।
इसका फंक्शन है अनजिपिंग ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए, बाइंडिंग ऑफ डीएनए या फिर रेप्लिकेटिंग द डीएनए। इनमें से जो भी राइट आंसर होगा आप उसके सर्कल को फिल करेंगे। फिर आप नंबर 2 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। द कंटिन्यूस रेप्लिकेटिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स थे, जिसमें एक स्ट्रैंड में कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होती है और दूसरे स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन है। तो जिस स्ट्रैंड में कंटिन्यूस रेप्लिकेशन है उसको क्या कहा जाएगा? लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाएगा, लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाएगा, डॉटर स्ट्रैंड कहा जाएगा या क्रोमोसोम कहा जाएगा। राइट आंसर का सर्कल फिल करेंगे। उसके बाद आ जाए आप पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। डिफाइन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन की डेफिनेशन आप लिखेंगे और याद रखिए कि पार्ट बी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी आपने अपने आंसर को 3 to 4 सेंटेंसेज में वाइंड अप करना है। फिर आप नंबर 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड लिस्ट द नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ द एंजाइम्स प्लेइंग रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में जो भी एंजाइम इस्तेमाल हो रहे हैं आपने उन सबको एनलिस्ट करना है और हर एंजाइम का फंक्शन लिखना है। इसके बाद आ जाएं अपनी रिव्यू एक्सरसाइज पे, जो कि आप पेज 42 पे है। नंबर 1 एमसीक्यू आप सॉल्व करेंगे। डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर ज्वाइंड टुगेदर बाय आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या मेटालिक बॉन्डिंग। अब डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स थे और एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री थे और ये दोनों स्ट्रैंड्स नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग की वजह से आपस में ज्वाइंट थे। तो ये जो पेयरिंग आपस में किस तरह से अटैच हैं वो आपने बतानी है कि ये जो इन दोनों बेसिस के दरमियान पेयरिंग थी वो क्या थी। क्या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, आयोनिक बॉन्डिंग थी, कोवेलेंट थी या मेटालिक थी। नंबर 2 एमसीक्यू भी आप सॉल्व करेंगे, विच इज रिपीटिंग यूनिट्स इन डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड हिस्टोन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, प्लास्टिड्स और क्रोमैटिड्स। सो वट एवर द राइट आंसर फिल इट सर्कल। नंबर 4 एमसीक्यू देखिए, 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइंड बाय हेलिकेज, एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज या लाइगेज। ये चारों एंजाइम्स हैं, आपने वो एंजाइम आइडेंटिफाई करना है जो डीएनए मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन अप करता है। इसके बाद आप अपने रिव्यू एक्सरसाइज के पेज 43 पे आएंगे। इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन द नंबर ऑफ न्यू फॉर्म स्ट्रैंड्स आर 2, 3, 4 और 5। बहुत ही आसान सवाल है, आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप पार्ट बी की तरफ आएंगे। आंसर दिस क्वेश्चंस ब्रीफली। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने उनको ब्रीफली आंसर करना है, यानी कि आपने 3 से 4 सेंटेंसेज में अपने आंसर को वाइंड अप करना है। नंबर 2 क्वेश्चन है, डीएनए स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। डीएनए स्ट्रैंड्स को कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स क्यों कहा जाता है, आपने रीज़न बतानी है इसकी। हो सके तो डायग्राम भी बनाइएगा। फिर आप क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। व्हाई इज डीएनए नीडेड टू रेप्लिकेट, यानी डीएनए रेप्लिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है और अगर डीएनए रेप्लिकेशन ना हो तो फिर क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हाट वुड हैपन इफ डीएनए वुड नॉट रेप्लिकेट बिफोर माइटोसिस। अब जानते हैं कि डीएनए की रेप्लिकेशन क्यों ज़रूरी है, सो आप इजीली इससे आंसर कर सकते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, व्हेन डज डीएनए रेप्लिकेट, यानी डीएनए रेप्लिकेशन किस टाइम पे होती है। इसको भी आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं, हमने पढ़ा है इस बारे में। फिर आप आ जाइए पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर 1 एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आप डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस विद डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आ जाइए अपनी समर पैक की तरफ। समर पैक में पेज 29 ओपन कीजिए। इसमें से आप हाउ डीएनए इज़ कॉपीड एंड मेड, इस एसएलओ का पर्पज़ आप पढ़ेंगे और इस सेकंड एसएलओ की लोकेशन भी बताएंगे बुक में कि ये कहाँ एड्रेस किया गया है। इसके बाद आप एक्टिविटी सॉल्व करेंगे जो कि एसएलओ 2 से रिलेटेड है। एक्टिविटी 3.1 है, बिलो इज़ द कोड फॉर सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, मेक इट्स कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बाय राइटिंग कम्प्लीमेंट्री बेसिस। आपने हर कम्प्लीमेंट्री बेस के अगेंस्ट इसकी बेस लिखनी है कि ए के साथ कौन सी नाइट्रोजनस बेस बॉन्ड बनाएगी, टी के साथ कौन सी बेस बॉन्ड बनाएगी, सी के साथ किसका बॉन्ड होगा। इसी तरह ये पूरा डीएनए स्ट्रैंड आपने कंप्लीट करना है। रीड द गिवन डीएनए स्ट्रैंड, क्रिएट 2। आपको एक डीएनए स्ट्रैंड की कॉम्पोजिशन बताई गई है कि स्ट्रैंड फर्स्ट में ये कॉम्पोजिशन है, ये वाली बेसिस अटैच हैं और दूसरे स्ट्रैंड में ये वाली बेसिस अटैच हैं। क्रिएट 2 डॉटर स्ट्रैंड्स। इस पेरेंट स्ट्रैंड से आपने 2 डॉटर स्ट्रैंड्स बनाने हैं सच दैट ईच डॉटर स्ट्रैंड मस्ट हैव 50% ऑफ पेरेंट स्ट्रैंड। राइट पेरेंट स्ट्रैंड यूजिंग अ डिफरेंट कलर। अब आपने क्या करना है कि 2 डॉटर सेल्स बनाने हैं और हर डॉटर सेल में पेरेंट स्ट्रैंड का 50% आना चाहिए। इसका ईजी सोल्यूशन ये है कि इस पेरेंट स्ट्रैंड का पार्ट 1 आप इस तरफ लिखिए और ये पार्ट 2
इसका दूसरी तरफ लिखिए और इसके अगेंस्ट कम्प्लीमेंट्री बेसिस डेवलप कीजिए। आइडेंटिफिकेशन के लिए ये जो पेरेंट स्ट्रैंड लेंगे इसको आप डिफरेंट कलर से राइट डाउन करेंगे और डॉटर स्ट्रैंड को डिफरेंट कलर से नोट डाउन करेंगे। अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, द MCQ सेक्शन ऑफ योर समर पैक एट पेज 35 एंड 34। पहले आप पेज 35 पे SLO बेस्ड MCQ सॉल्व करेंगे जो कि है DNA रेप्लिकेट्स इटसेल्फ। आपने बताना है DNA रेप्लिकेशन कब होती है। 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर फाइंड कीजिए और फिर उसकी रीज़न बताइए कि ये ऑप्शन क्यों चूज़ किया था। इसके बाद आ जाएं पेज 35 पे। पेज 35 से आप सॉल्व करेंगे नंबर 2 MCQ। अ जीन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स 36 एडेनिन यूनिट्स। एक जीन में एडेनिन के 36 यूनिट्स हैं, यानी 36 टाइम एडेनिन उस जीन में आई है। हाउ मैनी एंड विच कम्प्लीमेंट्री बेस विल बॉन्ड विद इट। अब 36 एडेनिन यूनिट्स के साथ कौन सी बेस कितनी दफ़ा इस्तेमाल होगी, यानी इसके कम्प्लीमेंट्री स्टैंड में कौन सी बेस आएगी। क्या 37 एडेनिन यूनिट्स आएंगे, या 18 थायमिन यूनिट्स आएंगे, या 72 थायमिन यूनिट्स आएंगे, या 36 थायमिन यूनिट्स आएंगे। राइट आंसर को चूज़ करने के बाद आप इसकी रीज़न बताएंगे कि आपने वो पर्टिकुलर ऑप्शन क्यों चूज़ किया। नंबर 4 MCQ सॉल्व करेंगे आप। अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA इज। DNA का स्मॉल सेगमेंट क्या कहलाता है? क्रोमोसोम कहलाता है, जीन्स, डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम या फिर न्यूक्लियोटाइड। अगेन आप इसकी रीज़न भी बताएंगे। फिर आप MCQ नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अ सिंगल DNA मॉलिक्यूल डिवाइड्स इनटू 2 फॉर्मिंग 2 न्यू स्ट्रैंड्स। यानी एक DNA मॉलिक्यूल जब रेप्लिकेट करता है या डिवाइड करता है तो 2 नए DNA स्ट्रैंड्स बनते हैं। हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंट DNA न्यूक्लियोटाइड इज प्रेजेंट इन ऑल डॉटर न्यूक्लियो DNA मॉलिक्यूल्स। अब नए बनने वाले DNA स्ट्रैंड्स में पेरेंट स्ट्रैंड्स का कितना प्रोपोर्शन होगा? 25% होगा, 50% होगा, 75% होगा या 100% होगा। राइट आंसर को फाइंड करने के बाद आप उसकी रीज़न बताएंगे। अब आ जाइए पेज 38 पे, जहां आपको SLO बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। हाउ डज DNA रेप्लिकेट इटसेल्फ। DNA रेप्लिकेशन का आप प्रोसेस बताएंगे विद डायग्राम, वेल लेबल्ड एंड नीट डायग्राम। यहाँ हमने अपना SLO अचीव कर लिया है। DNA रेप्लिकेशन का प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं, समझ भी चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।